एक हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी के बारे में और दूसरा जिस तरह से उनको रिसेप्शन मिला है फैन्स से। हम कैप्टेंसी के बारे में बात करें तो 3 बार उन्होंने कैप्टन किया है आईपीएल में, 2 बार गुजरात टाइटंस के लिए जहाँ पर गुजरात टाइटंस फाइनल तक पहुँची और 1 बार टाइटल जीता, दैट वाज़ देयर डेब्यू सीज़न। तीसरी बार अब ये मुंबई इंडियंस के साथ है, तीसरी बार जो इतना चर्चा में आया है सामने हार्दिक पांड्या, उनकी कैप्टेंसी क्योंकि मुंबई इंडियंस ने कोई मैच भी नहीं जीता है। नाउ श्रीनी, 2 बहुत अलग-अलग डिस्कशन पॉइंट्स है, ठीक है? एक है कैप्टेंसी का जो साहिल ने बताया कि क्यों मुंबई इंडियंस मैचेस नहीं जीत रही है। बट विद यू आई वांट टू टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज अबाउट फैन्स रिएक्टिंग टू हार्दिक पांड्या स्विचिंग द साइड, गोइंग बैक टू मुंबई इंडियंस एंड मुझे लगता है ये लोगों ने देखा नहीं है आज से पहले। कभी देखा नहीं था उन्हें, तो उन्हें एक बहुत डिफरेंट चेंज दिखा कि अरे हार्दिक पांड्या कैसे वापस जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नाउ व्हेन हार्दिक पांड्या इज लीडिंग द साइड एंड एमा इज नॉट विनिंग मैचेस, सो दे आर थिंकिंग दैट ओके, हार्दिक पांड्या वाज वेरी सेल्फिश इन टेकिंग द कैप्टन्स रोल। बट एज वी कैन सी ऑल द कमेंट्स ऑन आवर स्क्रीन, रविचंद्रन अश्विन ने बहुत चीजें कही, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि मैं ऐसे समय में खेलता था जहां पर 5 अलग-अलग कैप्टन्स होते थे टीम में। In fact, Ashish Nehra also said that, we have seen this in football. It has been in football since years. So why can't it happen in cricket? And he said that when I got to know about Hardik's decision, we all respected that decision. So now when former cricketers are welcoming this decision, what's wrong with the fans? Do you think it's just जैसे साहिल ने मेंशन किया एक भेड़ चाल है, किसी ने एक कमेंट करना शुरू किया तो सबने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया? No, see, I'll tell you what, it's a wrong comparison here. Where Ashwin is saying, have you seen, for instance, Joe Root and Zach Crawley fans have a fight, or Joe Root and Josh Butler fans have a fight? Or do you see Steve Smith and Pat Cummins fans in Australia, right? I think it's a wrong comparison. I'll explain to you why. Okay. Um, a sport vis-a-vis the popularity that it enjoys in a country, if you've got to directly compare that, then you got to compare Indian cricket with English football, right? Hmm. And then you got to compare and see English or European football. And then Hmm. you got to compare and see what kind of fan wars do they have in football. Hmm. When you compare a Messi versus Ronaldo or an Mbappe versus Haaland, Hmm. and when you compare and when you look at Manchester United versus a Manchester City, the Manchester Derby, you know, you are talking about the worst fans in the world. वो बैज ऑफ ऑनर लेके घूमते हैं वो कि हमसे Yeah. Yeah. वाहियात फैन पैदा नहीं हुआ, वो बैज ऑफ ऑनर लेके घूमते हैं सो वो कंपैरिजन कर रहे थे आप इंग्लिश क्रिकेट के साथ. इंग्लिश इज नॉट in cricket in England is not the most popular sport among the younger generation. Hmm. It is football. Likewise, IPL in India from a fan perspective is the biggest property. You go to NBA in America, you have the same kind of आज भी लगे पड़े हैं कि LeBron James has he taken gone past Michael Jordan in terms of greatness. जो Yeah. हमारे यहाँ लोग वो उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि क्या विराट कोहली तेंदुलकर से बड़े क्रिकेटर हैं. और जो Mhm. प्यूरिस्ट है वो बोलेगा भाई साहब यहाँ आजू बाजू मत आइएगा आप, सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. वहां पे भी आप यूएस में जाओगे तो वाइल देयर इज अ case being made for LeBron James, purists will say, no, boss, leave Michael Jordan alone. He's the greatest of all time. Yeah. So, again, because of the popularity that basketball as a sport enjoys, or NBA as a property enjoys in America. So, those are the necessary benchmarks. So, from that standpoint, I'll be very practical here. Uh, if I were to be looking at this space from a practical standpoint, I'm going to look at controllables. What are the controllables? This is not a controllable aspect for me. Why Hmm. will I want to worry about something that neither can I control, nor Hmm. does it directly affect me? When does this so-called fan war affect me? This so-called fan war affects me if I read it, right? If I log off. So आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या का ट्विटर वो खुद लॉग इन करता होगा आपके और मेरे जैसे, अच्छा आज मेरे बारे में फैन ने क्या लिखा? वो नहीं होता. देयर इज समबडी वो उसको जो 20 करोड़ मिलते हैं फ्रैंचाइज से उसमें से वो 10 लाख किसी को देता होगा कि बेटा बैठ मेरा ट्विटर और इंस्टाग्राम देख. उसके लिए लोग हैं.
ये प्रॉब्लम तो ट्रोल के पास है, ट्रोल के पास कोई और नहीं है, वो बैठा रहता है, वो मतलब घर में कुछ है नहीं करने को तो वो बैठा है, फ्री का इंटरनेट दिया हुआ है, वो भी हार्दिक की कंपनी ने दी है वो फ्री का इंटरनेट, जो हार्दिक को कप्तान बना के लेके आए वो इंटरनेट भी वही फ्री दे रहे हैं, तो आप बैठे हो फ्री में मैच देख रहे हो, फ्री में उन्हीं का इंटरनेट यूज कर रहे हो और फ्री में उन्हीं के कप्तान को गाली दे रहे हो, तो तो लोगों के पास टाइम है। So anyway, so to cut a long story short, I want to make this one point here. Hmm. Fan wars are the future. Hmm. Fan wars are going to get more and more volatile, more subjective, more distinct in various forms, and you are good. Of course, am I saying that they'll remain as jungly as they are now? Probably not. They will evolve, uh, right? Yeah. Fan wars are the future. I'll give you an example. There are shows in the US right now which happen from a modern day league perspective where the hosts जैसे सुरम्या, साहिल, ताउस एंड के श्रीनिवासा, हम चार बैठे, हम एक लीग के बारे में, एक मैच के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? Hmm. ऐसे शोज है यूएस में जहां हमारे जैसे होस्ट बैठते हैं और वो भी बात ऐसे करते हैं जैसे वो चार ट्रोल बैठे हैं, जैसे आप Yeah. आरसीबी के ट्रोल हैं, आप एमआई के ट्रोल हैं, आप आरआर के ट्रोल हैं और आप सीएसके के ट्रोल हैं। तो वो अभी साहिल मुझसे कहेगा, अरे जाना क्या बात कर रहा है तू एमआई के बारे में, और मैं साहिल से बारे में, तू तो बड़ा आ गया ना मुझे बताने वाला है दिल्ली के बारे में। एंड देन सुरभ में आएगी, बोले क्या तुम लोग नॉनसेंस बात करो, पंजाब को तो भूल ही जाते हो, फिर ताउस आएगा कुछ और बोले, यू नो व्हाट, दैट्स हाउ Yeah. दीस शोज आर। सो दे Yeah. आर केटरिंग टू एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ अ मैड फैन बेस, Yeah. राइट? सो द मोर द मेरियर। देखो, आप एक चीज याद रखना, आपको प्रोडक्ट वही मिलेगा जिस काबिल आप कंज्यूम करने किस काबिल हो, मतलब यू नो Hmm. what you will be delivered is what you demand for, right? Yep. So you are Absolutely. as good as the product that you consume. Remember Hmm. that, right? Hmm. So for example, in Hollywood, Tom Hanks makes a Forrest Gump because the people, the viewers who consume cinema in the West have put the pedestal benchmark at that लेवल, ठीक है? तो Yeah. आपको यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा पिक्चर का, बट आपको यहाँ पे फिर सिनेमा उस तरीके की मिलती है जिस तरीके की सिनेमा आप कंज्यूम करते हो। लोग Hmm. बोलते हैं आईपीएल इज नॉट क्रिकेट। मैं उनको Hmm. कहता हूँ, अगर आईपीएल क्रिकेट नहीं होता तो आप और मैं रोज शाम को 7:30 बजे बैठे नहीं होते, उसमें भी आप बोल दो कि नहीं नहीं मैं नहीं बैठता हूँ। अगर आप नहीं बैठते हो मेरे भाई, आप दुनिया में एक अकेले हो, क्योंकि कोई कंपनी है कि 48,000 करोड़ ब्रॉडकास्ट राइट्स को ऐसे ही नहीं Yeah. देके जा रही है, वो पागल नहीं है। पागल तो आप ही होंगे जो आपको समझ नहीं रहा है ये मैथमेटिक्स, राइट? तो लोग Hmm. देख रहे हैं, तभी तो पैसा आ रहा है। तो ये फ्री Yeah. फंड में पार्टी नहीं चल रही है कि किसी को पता नहीं पार्टी क्यों चल रही है, बट सब नाच रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है ना। तो कारण है, and these fans are the ones who are driving this party forward, Yep. okay? And you cannot do anything, you can't wish them away. They are the Hmm. ones driving the economy of the game, Yeah. whether you like it, whether you don't like it. You have to live with them. I'll give you an example. ये Hmm. देखो, अभी रविशंकर साहब के हर मैटर पे एक व्यू होता है, अब हमको सुनना पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है, इनकी ये जो बोलते हैं इनको सुनना पड़ेगा, इट्स लाइक दैट। देखो, अभी एक मैं आपको बात बताता हूँ, कहते हैं ना कि इंडिया कंज्यूम्स 80% ऑफ ऑल क्रिकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? Yeah. अगर आप इंडिया में ही कंजम्पशन ले लोगे तो उत्तर प्रदेश जो है, सिर्फ इंडिया में उत्तर प्रदेश कंज्यूम्स मोर देन 50%, 15%, 15, मोर देन Hmm. 15% ऑफ पैन इंडिया क्रिकेट कंजम्पशन। तो अब आप सोचो कि जो वर्ल्ड के 80% का 15% सिर्फ एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश। आप कहां जाओगे? Hmm. Those are the numbers, and coming from that, सब लोग ने अपना 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 एक ठिकाना ढूंढ के बैठे हैं। कहीं फैन क्लब्स हैं। आप साउथ में, आई एम सॉरी बट आई एम ट्राइंग टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, आप Yeah. साउथ में जाओगे तो चिरंजीवी वर्सेस वेंकटेश वर्सेस नागार्जुना, अल्लू अर्जुन वर्सेस राम Yeah. चरण वर्सेस, इनके फैन क्लब्स होते हैं। रजनीकांत वर्सेस कमल हसन, इनके फैन क्लब्स होते हैं। मोहनलाल वर्सेस ममूटी, इनके फैन क्लब्स होते हैं। इनके फैन क्लब्स जो हैं, ये थिएटर वाले फैन क्लब्स को बिल्ड करते हैं ताकि इनके Yeah. जब फ्राइडे रिलीज आए तो हॉल भर जाए।
जो सलमान खान के जो आज गेटी ताउस बताएगा आपको कि गेटी उसका फैन क्लब जो है गेटी में, फ्राइडे के दिन जिस दिन मूवी रिलीज होता है, भाई का शो है तो जस्ट जाना ही है, भाई ने बोल दिया पिक्चर रिलीज कर रहा है तो जाना है, इट्स दैट काइंड, राइट? तो वो एक Yeah, फैन क्लब है, उसको कई सारे इकोसिस्टम्स फ्यूल करते हैं, कई बार जो सेलिब्रिटी होते हैं वो खुद फ्यूल करते हैं। सलमान yeah, खान भी अपने फैंस का ध्यान रखते हैं ना, उनको तो रखना ही पड़ेगा, तभी तो फैन उनके साथ खड़े रहेंगे। वैसे ही right. रोहित शर्मा को या विराट कोहली को अपने फैंस का ध्यान तो रखना पड़ेगा। विराट कोहली, मैं तो कई बार कहता हूँ, क्रिकेट तो वो आजकल इंस्टाग्राम के लिए ज्यादा खेलते हैं, आप देखो वो लगे पड़े रहते हैं रील बनाने में। हैव यू सीन विराट ऑन द फील्ड? वो ड्रिंक्स लेके आएगा तो नाच लेगा, आंख दिखा देगा, वो स्लिप में खड़ा रहेगा तो अनिल कपूर के माफिक डांस वांस कर लेगा, उसका रील बन जाएगा, रील के फैंस ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे चलाने ये चल रहा है, ये माहौल है, Yeah. और ये परमानेंट नहीं है, ये फिर इवॉल्व होगा। इस Hmm. बीच में एक शुभमन गिल जैसा क्रिकेटर आएगा जो शायद अनिल कपूर का डांस ना करे, वे टू क्लासी फॉर समथिंग लाइक दैट, बट वो नया तरीका ढूंढेगा। Right. It will keep evolving, and cricketers have to go through this because you have signed Yeah, up for it. A sports yeah. person, a celebrity, you have to go through it. You've signed up for it. Any celebrity, whether you are a movie star, a Hmm. footballer, a cricketer, you have to sign it. You have to live with Hmm. it. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें, या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस, या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।